कल हमारा एक टॉपिक देखना बाकी था, दैट इज गार्बेज कलेक्शन. सो किसी को आइडिया है दैट व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन एंड व्हाई वी यूज इट? आइडिया तो है थोड़ा बहुत. बोलो. तो एक कोई भी अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल या फिर मेमोरी कोई वेस्टेज होता है तो उसे कनेक्ट करके फ्री मेमोरी पूल में ऐड करता है. ऐसा कुछ था. और ओके, सो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमको पता है कि वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं. तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट एक बार काम खत्म होने के बाद which are no longer needed, so that is deleted by the that is destroyed by the garbage collection. एक्चुअली बेसिकली गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, तुम्हारा अनयूज जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे हीप मेमोरी में, उसको अनयूज ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है. तो इट्स अ प्रोसेस of removing unused objects from heap memory. उसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन. ओके. और क्या जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, हमको तो ये तो पता है कि सी एंड सी प्लस प्लस ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है, क्या जावा भी करता है? यस मैम. उसके लिए एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है. हाँ, कौन सा फंक्शन है वो? फ्री फंक्शन. gc.gc ऐसा system.gc. एग्जैक्टली, system.gc होता है. हाँ, तुम यूजिंग फ्री भी कर सकते हो उसको. और एक हमारा मेथड होता है दैट इज फाइनलाइज मेथड. फाइनलाइज मेथड में हम बाद में आते हैं, पहले हम एग्जांपल करते हैं इसका. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम कैन यू से इन इंग्लिश मैम? आई डोंट नो हिंदी. ओके, हु इज दिस? Rita मैम. ओके ओके. ओके मैम. So that part you understand na, that what is garbage collection and why we use it? Yes मैम. So first I'm creating here something. So
I will create a parent class. So class and student. So student is exists. So student data. Then I will take a few variables. So private, int, id. Second is private, string name, and third one is private. Actually, don't need it. Okay. Only two variables I'm taking. Then I will create a constructor. So my constructor is public student data. So I will create here a parameterized constructor. So in this constructor, I will pass the ID and name. So so ID and string name. So here I will invoke this variable using the this keyword. So this dot ID and this dot name. Okay, so my constructor is complete, and then I will create one method, so which will show details. So public void show. Okay, so I'm gonna print here. So first I'm gonna print ID. So ID is ID. Okay, sorry, plus D, then name. So name is name. Okay, that part is done. Then this is my main class, and here I'm gonna create a default constructor where I'm gonna pass the information. So here, so my student data, then student data, then pass ID and name. So one, and in the name, I will pass like something A, B. Okay, so I have added one more data here. So student data 1, and here it will be 2 and space. Okay. So after that, I have to call the show method. So student data dot show and student 1 dot show. Okay. So now, okay, first run this program. Okay, so that part is done. Okay, so now I'm gonna use here one method known as, okay, and do you have any idea of why we use finalize method?
Any idea what is finalize method? गार्बेज कलेक्टर के मतलब पहले यूज होता है। Why we use it before garbage collector? Sorry. बोलो. Okay, basically garbage collector से पहले नहीं, we use finalize method basically when a object is okay. We use finalize method before a object is being garbage collected. There we use finalize method, not before garbage collector. एक ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्शन से जाने से पहले हम इसको यूज करते हैं. ओके. So now, okay, I'm gonna add here something more like I have string private ID string. Okay, okay. First, let me use the method like okay, this is our method. Okay, so we will okay in this program where we have to use the garbage collection finalize method. After the function called पब्लिक वाइड उसके बाद Public void show, exactly. So after public void show, I will use. So how we use garbage finalize method? You always using the protected access specifier void finalize. protected void And- finalize. Yes, and garbage collector. Garbage collector. No, finalize method is also a special method from a object class, which is also a special class in Java. So protected, not only finalize method, actually toString method, and as well as the clone method. Those are the special method from the object class. Okay, so finalize. Okay, so my method is done, and here what I can do. Okay. Okay. So- After, थ्रो का यूज होता है ना इधर थ्रो टू समझ नहीं यार, एक बार बोलो. और थ्रोएबल का यूज नहीं होता है इधर. Yes, it can throw और ये थ्रोस भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसका भी मैं दिखाती हूँ. ओके, सो फर्स्ट मैं एक प्राइवेट ओके आई एम गोना चेंज हियर सो नेम and after that okay I will use a static variable here also. So private static, then in id sid equal to 1. Okay, I'm assigning a variable with this. So after that, okay, name id is done. Okay, so obviously this is a static variable, so I can directly access it using the parameterized constructor. So this dot sid, I'm gonna increment it. So sid plus plus. Okay. Okay, this part is done, and now we have to change it like show detail. Show void show is okay. Okay, and in the finalize method, I'm gonna use a decrement operator in the case that garbage collection will call the finalize for 2 times. Okay, finalize method. That thing you know now, that finalize method can only call once for one object. Okay, so I have done this thing incremented part because I want to call finalize method 2 times for 2 objects. So that's why I will use it like minus minus then sid. Okay. Okay, so that thing is done. Now come to our main method. Okay, so that is student data dot show, student one dot show, and now I will call the using the okay
So student data, I can call the variable id student data dot okay show. Okay, you are only calling show, that id is not okay, okay, yeah, I got it. I have to make a method for it. Okay, so before finalize, I'm gonna create one more method, that is public void show SID. Okay, so here I will print the SID. So student ID is so SID. Okay. Okay, now I want to call the method using the student data object. So student data dot show SID. Okay, and I can call using the two objects. So for this object, I will call also the method. Okay, dot. Okay. Okay, so I have done this. Now I will call the okay. Now, okay, so for the finalize method, actually it used to the unreferred object, na? So do you know what is the meaning of unreferred object? Any idea how can we make the object unreferred? Any idea? Okay, रूपसी जब left कर दिए तो मैं हिंदी में बोलती हूँ. Okay, so basically, okay, स्नेहा के अलावा और किसी को पता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे अनरिफर्ड कर सकते हैं? What is the meaning of that? No, So ma'am. मैं बताती हूँ. अनरिफर्ड ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना कि वो ऐसे होता है. एक होता है कि तुम उस वेरिएबल को नल से असाइन करो. सेकेंड one is assign the variable into another variable, and third one is तुम उसको new keyword के साथ new फिर हम जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उस तरह से तुम उसको क्रिएट करो. तो ये तीनों वे है. फर्स्ट इज assign the null value, second is refer the object into another object, and third one is using the new keyword. So यहाँ पे हम तुम्हारा नल वैल्यू का यूज करेंगे. तो उसको करने के लिए एक्चुअली दोनों ही एक साथ यूज करेंगे. तो नल एज वेल एज दोनों को एक साथ रेफर करना. तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा स्टूडेंट डेटा. तो स्टूडेंट डेटा इक्वल टू क्या होगा? स्टूडेंट डेटा 1. सो स्टूडेंट डेटा 1 इक्वल टू हम इसको क्या असाइन करेंगे? नल करेंगे. सो नल से देख लेते हैं हमारा कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, मतलब यहाँ तक हमारा ठीक है. देन वी विल कॉल द मेथड system.gc. तो system.gc मेथड. ओके, सो system.gc मेथड. ओके, system.gc को gc के अलावा क्या? ओके, system.gc को तो हमने गार्बेज कलेक्टर वाला मेथड कॉल कर लिया. अब मैं इस फाइनलाइज को कॉल करना चाहूँ तो वो हमको कैसे करना पड़ेगा? यूजिंग सिस्टम. सो करते हैं वो. सो सिस्टम, सो करने के लिए system.run फाइनलाइज, ये वाला मेथड. ओके, सो हमने फाइनलाइज को भी कॉल कर दिया. अब क्या करेंगे? इसके बाद हमने आईडी वाला जो किया है उसको करेंगे. सो यूजिंग द यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल बनाया है क्या उसका? ओके, एक सेकंड. मैंने नेक्स्ट आई को किससे कॉल किया है? स्टूडेंट डेटा से कॉल किया है ना. ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटा ऑब्जेक्ट बना रही हूँ. ये कहाँ का हुआ मेरा? ओके, ये मैं करके बाहर कर रही हूँ.
इसको बाहर कॉल करने के लिए मुझे इसको फिर से रेफर करना पड़ेगा। उसी में मुझे इसको असाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला फिर से बना लेती हूँ। ये वाला है हम यहाँ पे वैल्यू को सेम नहीं रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे। तो 3 रखते हैं एंड 4 यहाँ पे सिर्फ 3 को रखेंगे। ओके, सो वी हैव टू कॉल इट इन देयर। यहाँ पे आपको कॉल करना है। सॉरी गाइस, मेरा ना थोड़ा तबीयत खराब है। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको किया है एंड यहाँ पे शायद यहाँ पे हमको एक लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नल से असाइन करने से पहले हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला मैं इतना तो कॉपी कर देती हूँ। सो यहाँ पे हमको जो करना है, अब हमको वो चलाना है। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। हाँ, तो ये बेसिस हमारा मेन मेथड का होता है। सो स्टूडेंट डेटा डॉट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। एक मिनट, इसको तो मैंने यहाँ से ही दिया है। ताकि मुझे वैल्यू को चेंज। ओके, मैंने एक वैल्यू को लिया है, यहाँ पे कॉल किया है और ये क्या किया है, मैंने एक सब ब्लॉक लिया है मैन मेथड के अंदर, जिसमें मैंने 2 को यहाँ पे वैल्यू पास किया है। ओके, ये हो गया। फिर मैंने स्टूडेंट डेटा से शो को कॉल किया, स्टूडेंट डेटा 1 से शो को कॉल किया, फिर स्टूडेंट डेटा से शो आईडी, स्टूडेंट डेटा 1 से शो आईडी, फिर असाइनिंग लल, देन जीसी रन फाइनलाइज। ओके, यहाँ पे तो शो का कॉल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ये वाला को एक्सेस कर पाएगा क्या, देखते हैं। शायद आईडी शो नहीं करेगा, एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो मेरा तो क्लास का है क्या? ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कॉल क्लोज होगा। एक सेकेंड, मैंने कहीं पे क्लोज किया हुआ है मतलब ब्रैकेट का ठीक ठाक नहीं है शायद। एक स्टार्टिंग क्लास, देन कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर वाला ख़त्म हुआ यहाँ पे, देन वॉइड शो उसका यहाँ पे ख़त्म हुआ, देन शो एच.आई.डी यहाँ पे ख़त्म हुआ, देन फाइनलाइज एंड दिस, ये क्लास पेरेंट क्लास का ओवरव्यू हुआ। देन कम टू माय मेथड दैट इज क्लास, क्लासिक कम यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे जो किया एक सब यूज़ किया था। ओके ओके ओके, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। सो मैंने इसको यूज़ किया है, ये नहीं ले रहा है। ओके, मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा। सो मैं एस दे देती हूँ, S1। ओके, सो नाउ आई हैव टू चेंज इट टू S and S1 S1। ओके, सो यहाँ पे मेरा होगा, तो यहाँ पे होगा S1 S। ओके, यहाँ तक हो गया मेरा। अब होगा शायद। ओके, सो अब मैं स्टूडेंट देखते अब मिलता है। हाँ, मिल गया। स्टूडेंट डेटा डॉट कौन से वाले को कॉल करना है मुझे, ये शो आईडी का शो। ओके
ओके, तो यहाँ तक मेरा हुआ। ठीक है, चलो अब रन करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या है। ओके, सो देखो अभी ये वाला, तो मैं क्या क्या हुआ, फर्स्ट में तुम्हारा जो है ID1 एंड नेम इज AB वो प्रिंट हुआ। देन अगेन मेरा क्या है, देखो स्टूडेंट ID इज 1, तो ये वाला कौन सा है, स्टूडेंट ID वाला, ये इंक्रीमेंट वाला। तो बिकॉज ये एक्चुअली ये बताओ तो इसका ऐसा आउटपुट क्यों आया कि स्टूडेंट ID इज 1 एंड स्टूडेंट ID इज 1 फॉर 2 टाइम्स, दोनों का ही 1, ऐसा क्यों? मैम इंक्रीमेंट में पहले वो लिया और फिर दूसरे में स्टोर किया इसीलिए। एग्जैक्टली, हाँ। एंड थर्ड में मेरा क्या है, माय ID इज 3 एंड नेम इज A एंड माय ID इज 4 एंड नेम इज B। सो अगेन क्या है, मेरा स्टूडेंट ID इज 1 एंड स्टूडेंट ID इज 1, फिर से उसी वजह से। एंड नाउ मेरा ID इज -1 आ रहा है। सो व्हाट इज द रीजन कि मेरा -1 शो कर रहा है? मैम ID पहले 0 हुआ फिर -1 हुआ, माइनस। क्योंकि देखो मैंने रन फाइनलाइज के बाद क्या किया है, उसको शो ID दिखाने के लिए बोला है दैट ID, इसलिए -1 शो कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है ये वाला? ऊपर का कोड दिखाइए ना। हाँ, मैं पूरा स्क्रीन पूरा करती हूँ। हाँ देखो, और एक मैं दिखाती हूँ फाइनलाइज का, जो स्नेहा ने बोला यूजिंग द थ्रोज, वो मैं दिखाती हूँ। ये वाला देखो उसका। मैम वहाँ फाइनलाइज वाला में 0 आना चाहिए ना, कौन सा लास्ट वाला जो, लास्ट वाला जो डाले हैं। ये वाला? नहीं सबसे नीचे वाला लाइन ओके, चाहिए सबसे नीचे, हाँ बोलो। हाँ तो स्टूडेंट डेटा डॉट शो ID में तो 0 ना आना चाहिए था। स्टूडेंट ID और शो में क्यों 0 क्यों आना स्टूडेंट चाहिए? डेटा डॉट शो ID मैम पहले तो आपका इनके ये डिक्रीमेंट हुआ 1 से, तो वो तो उसके बाद 0 आएगा। 0 क्यों आएगा तुम्हारे, देख फर्स्ट में तो तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अब क्या है, हाँ। बिफोर फाइनलाइज कम आप जब एक गार्बेज कलेक्टर में एक ऑब्जेक्ट फाइनलाइज मेथड वी यूज बिफोर अ डेट ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टर, तो वो तो गार्बेज कलेक्टर से पहुंचने से पहले ही काम कर रहा है ना, तो इसीलिए तो वो 0 नहीं होगा, वो तो डिस्टेंस। मैम 28, 29 और 42 लाइन एक बार फिर से बताइए। कौन सा वाला? 28, 29 और 42। ओके। सो ये देखो, ये एक मैंने तो मेथड लिया है शो ID वाला, जहाँ पे मेरा क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने ये वाला ID लिया है इंक्रीमेंटेड, उसी को शो करेगा। तो बेसिकली मैंने ये फाइनलाइज मेथड इस तरह से मेरा ये इस तरह से मेथड को डिक्लेयर करने का मोटो ही था, क्योंकि फाइनलाइज मेथड में क्या होता है, तुम्हारा फाइनलाइज मेथड हम एक ही बार एक ही ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, दोनों के लिए नहीं कर सकते प्रोग्राम में। सो मेरा इस तरह से लिखने का मोटो था कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ही उसको कॉल करना चाहती हूँ, तो इसीलिए तुम्हारा ये फर्स्ट वाले का जब प्रिंट हुआ तो उसके लिए कॉल हुआ, तुम्हारा 1 प्रिंट हुआ, एंड सेकेंड वाले के लिए भी कॉल हुआ। अब समझ में आया? अच्छा ओके, सो डन। ओके, सो Yes. हम थर्ड वाला करते हैं, दैट इज यूजिंग द थ्रोस। ओके, सो मैं एक और क्लास बनाती हूँ, ये वाले का नाम में क्या, तो एक
ये वाला एक छोटा सा ही करूँगी जो तुम्हारा इसका जावा एग्जाम्पल नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो काम है वो है मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाली हूँ। तो मुझे बनाना है जावा एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट। सो जावा एग्जाम्पल देन जावा एग्जाम्पल इक्वल टू न्यू जावा एग्जाम्पल। ओके, ये मेरा बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने क्या बोला, अनरेफर्ड बनाने के लिए हम उसको नल से असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट नल से असाइन करूँगी। फर्स्ट मैंने नल से किया। अब मेरा सेकेंड वे क्या था, तुम उसको एक मेरा सेकेंड वे बताओ। नल के बाद मैंने क्या पॉइंट बोला अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट करने के लिए? मैम उसको जावा को कोई वैल्यू दे देंगे और उसको किसी में कॉल कर लेंगे जावा एग्जाम्पल, मतलब ऑब्जेक्ट बना कि बिना वैल्यू दिए भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली कॉल नहीं, उसको दूसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे। ये एक पॉइंट है। और सेकेंड है यूजिंग द न्यू कीवर्ड। सो हम यहाँ पे तीनों ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में करूँगी न्यू कीवर्ड से एक बना लूँगी वो, देन ये मैं उसको इनिशियलाइज कर दूँगी। तो मुझे उसके लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जावा एग्जाम्पल का। सो जावा एग्जाम्पल फिर ये इक्वल टू जावा जावा एग्जाम्पल। ओके, मेरा फर्स्ट इज मैं यहाँ पे कोई वैल्यू यूज नहीं करूँगी, हम बिना उसके भी कर सकते हैं। सो जावा एग्जाम्पल फिर मैं लिखूँगी बी इक्वल टू न्यू जावा एग्जाम्पल। ओके, तो यूजिंग मैंने न्यू कीवर्ड कर दिया। अब मेरा सेकेंड काम है उसको असाइन करना है एक दूसरे में। सो इक्वल टू बी, दैट पार्ट इज ऑल्सो डन। तो अब मेरा थर्ड काम क्या है, सिस्टम डॉट जीसी को कॉल करना। तो सिस्टम डॉट जीसी कॉल हो गया। अब मेरा काम क्या है, इसके बाद फाइनलाइज को कॉल करना। सो फाइनलाइज हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज। ओके, यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड काम क्या है मेरा, ओके तो यहाँ पे मैं एक पहले सिक्स आउट लगा देती हूँ, मैं उससे थ्रो करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ओके। सो यहाँ पे ओके, तो फाइनलाइज क्या थ्रो करता है, एनी आइडिया फाइनलाइज क्या थ्रो कर सकता है? ओके, सो एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को पता है ना? क्या? एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो पता है ना तुम लोगों को? यस मैम। हाँ, तो एक्सेप्शन में अगर हम सबसे पेरेंट क्लास को पकड़े तो वो क्या होता है, दैट बेस क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शन। जो पेरेंट होता है एकदम, दैट इज थ्रोएबल। तो वो थ्रोएबल को थ्रो करता है हमेशा। तो थ्रोएबल मिलेगा यहाँ पे, ये देखो थ्रोएबल। ओके, तो हमने इसको थ्रो करवा दिया है। चलो अब ये चीज तुम बताओ मुझे कि अब इसको मैं रन करूंगी तो ये जो मेरा फाइनलाइज में प्रिंट है ये क्या मतलब क्या कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार या उससे ज्यादा या फिर एक बार भी नहीं, ऐसा करते हैं। एक ही बार होगा मैम। एक ही बार, ओके। और कोई बोलो ये कितना बार यूज होगा, एक बार या फिर ज्यादा या फिर एक बार भी नहीं? नो आइडिया मैम। सो
मैं इसको रन करती हूँ तो हम खुद ही देख लेते हैं कितना बार प्रिंट होता है। ओके चलो ये 2 बार प्रिंट हुआ। अब कोई आइडिया कि ये क्यों हुआ 2 बार प्रिंट? तो एक बार हाँ बोलो क्या बोलना चाहते थे? ए के लिए एक बार हुआ, एक बार बी के लिए हुआ। नहीं तो एक को बी से यहाँ पे ऐसा ही नहीं कर दिया ना। ओके बेसिकली ये रीजन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कॉल किया है सब ये सारे परफॉर्म करने के बाद सिस्टम डॉट जीसी। तो सिस्टम डॉट जीसी क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट जीसी एक्चुअली तुम्हारा गार्बेज कलेक्शन को कॉल करके उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। फिर क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको करने के बाद हमने फाइनलाइज मेथड को कॉल किया जिसने थ्रोस को थ्रोएबल मतलब थ्रोएबल को थ्रोस किया है। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग फाइनलाइज मेथड लाइक दिस इट इज ओवररिडन। तो फाइनलाइज मेथड यहाँ पे ओवररिडन हो रहा है। तो इसीलिए तुम्हारा जब ये मेथड एक ऑब्जेक्ट के लिए इन्वोक हो रहा है ये तुम्हारा एक बार डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, पर फिर भी बिकॉज ऑफ द ओवररिडन प्रोसेस ये और एक बार तुम्हारा फिर से प्रिंट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज इन्वोकिंग ट्वाइस। इसीलिए हमारा 2 बार इसलिए आउटपुट शो किया। ओके ओके क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या फिर मैं और एक बार बोलूं? और एक बार। Okay. So basically the reason is we are after making those variables unreferred object, we are calling system.gc. So system.gc what doing here, system.gc actually calling the garbage collection while we are demonstrating it. That part is done, and after that we are using finalize method doing like it throws the throwable class. So now the finalize, because we are using the finalize method like this, it is get overridden. So this method is invoked just before the object is destroyed. So if the method is invoked before the object is destroyed, that means the object is not destroyed yet, na? That's why it is invoking twice. इसीलिए हमारा 2 बार प्रिंट हो रहा है। ओके 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 सो गार्बेज कलेक्शन में ये फाइनलाइज मेथड ही है बस, दैट इज डन। एंड नाउ हम जाते हैं अभी एक्सेप्शन। ओके सो मैं तुम्हें नोटपैड शेयर करती हूँ। सो नाउ हम क्या करेंगे, सो नाउ हम करेंगे एक्सेप्शन। ओके सो व्हाट इज एक्सेप्शन? Disturbance in the code such as error. Exception is different, error is Unwanted different. event. Unwanted event, okay. और जो एग्जाम्पल जैसे में 0/0 है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं आता, तो ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन हो जाता है। तुम कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करो वो हमेशा ना हाँ। तुम्हारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा। मैम एक्चुअली रन टाइम नहीं में मैम। कोई एरर आया तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में भी आ सकता है, नॉट ओनली इन रन टाइम। तो मेनली रन टाइम में इसे हैंडल Run करने time के लिए में- तो यूज होता है। नहीं, हम कंपाइल टाइम में भी यूज करते हैं उसको। Basically, okay. So basically, exception is what? Exception is an abnormal condition that will disrupt the normal flow of the program. So जब भी हमारा एक्सेप्शन ऑकर होता है हमारा तो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो जो है वो तो बंद हो जाता है ना, क्योंकि जहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर होता है वहां से हमारा प्रोग्राम कंपाइल करना स्टॉप कर देता है। That is exception. Okay. And what is exception handling?
हैंडलिंग मतलब मैम बोलो। 5 कीवर्ड यूज trying to solve that problem. सो एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? रोज का यूज करके यूज ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच फाइनली फाइनली कीवर्ड सिंटैक्स एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली रॉन्ग है। बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम सिर्फ ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। थ्रोस एंड थ्रो कीवर्ड का काम अलग है। So if someone asks you that how we handle the exception, then only answer that using the try catch block. ठीक है? Throws and throw use करके हम हैंडल नहीं कर सकते एक्सेप्शन को। So basically exception हमारा 2 types होता है। One is check and second one is uncheck. So check and uncheck means चेक में उसे ट्राई ब्लॉक में हम चेक करते हैं कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है, और विदाउट चेकिंग चेक एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन होता है वो एग्जांपल। बेसिकली चेक एक्सेप्शन मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तब जेवीएम जो एक्सेप्शन को चेक कर सकता है, मतलब जेवीएम जो एक्सेप्शन उसको पता है, अगर उसी में तुम्हारा एक्सेप्शन ऑकर हुआ दैट इज चेक एक्सेप्शन। एंड अनचेक मींस जो जेवीएम तुम्हारा चेक नहीं करता। बेसिकली अनचेक एक्सेप्शन हैपेंस मोस्ट ऑफ द इन रन टाइम, बट चेक एक्सेप्शन हैपेंस मोस्ट ऑफ द इन कंपाइल टाइम। तो एक दो रो को एक्सेप्शन का मैं तुम लोगों को ये दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा, ये जो मैंने बोला कि इन दोनों का बेस क्लास है थ्रोएबल। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे थ्रोएबल का ऊपर भी हमारा ये ऑब्जेक्ट क्यों बना हुआ है, कोई बता सकता है? वो ऑब्जेक्ट थ्रोएबल के ऊपर भी ऑब्जेक्ट क्यों है? एनी आइडिया इसका? maybe after the creation of object probably एक्चुअली द रीजन इज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। मतलब तुम्हारा जावा में भी जितना ही क्लास है ना, मैं कस्टम क्लास की बात छोड़ ही देती हूँ, वैसे भी जो हमारा ऑलरेडी इनबिल्ट जो क्लास है ना जावा में, जावा मतलब कितना 5000 टोटल क्लास ही है हमारा जावा में। तो सारे क्लासों का बेस क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा टॉप में रहता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज थ्रोएबल। सो थ्रोएबल से हमारा क्या जाता है? एक होता है एरर एंड एक होता है एक्सेप्शन। यहाँ पे तो एक्सेप्शन का ज्यादा नाम दिया हुआ नहीं है, फिर भी आईओ है, एसक्यूएल है, और भी है तुम्हारा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, फिर आता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, देन अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। ओके, देन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्सेप्शन के साथ एरर। तो एक्सेप्शन और एरर में कोई डिफरेंस? ये वाला डायग्राम फिर भी ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ पे फिर भी बहुत सारे लिखा हुआ एक्सेप्शन। हाँ, ये देखो एरिथमेटिक लिखा हुआ है तो आधा समझ में नहीं आ रहा दिखने में। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, हाँ ये वाला एक है। फिर है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट, बहुत सारे एक्सेप्शन। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन? मैम रन टाइम और कंपाइल टाइम के कारण जो भी एक्सेप्शन आता है तो उसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्शन। और जो जेवीएम इस सब के द्वारा आता है, ऐसे मशीन के द्वारा कोई भी एरर, जैसे मेमोरी रैम पर ये हो गया, वो सब एरर आ जाता है। रैम का साइज आपका 4 GB, लेकिन आपका जो मेमोरी है वो 10 GB यूज हो रहा है, तो वहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी का जैसे एरर आ जाएगा। सो एक्सेप्शन और एरर में सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं पर हम एरर को हैंडल नहीं कर सकते ना एरर को हैंडल। तो हमको एरर को सॉल्व करना पड़ता है, हम उसको ट्राई कैच से क्या कभी भी हैंडल कर सकते हैं? नहीं। So that is the main difference. So we can handle exception but can't handle एक्सेप्शन को रिकवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको एरर को नहीं कर सकते। ओके, तो ये है सबसे तुम्हारा बड़ा डिफरेंस, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस की बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। ओके, तो डायग्राम पे मैं दिखा दी, चेक एंड अनचेक भी बता दी। ओके चलो अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसका। बहुत सारे एक्सेप्शन है। ओके, और ये जो हम एक तो तुम लोग चेक एक्सेप्शन का नाम तो बता सकते हो, ये तो बता सकते हो क्योंकि ये तुम लोगों ने देखा हुआ है। एक बताओ तो चेक एक्सेप्शन का नाम, तुम लोगों ने ये मेरे एग्जांपल में देखा हुआ है। मैंने कहा एक्सेप्शन पढ़ाया नहीं था बट था एक एग्जांपल में। इनपुट आउटपुट है ये, एंड फाइल इक्वेशन। जब हम सिंक्रोनाइजेशन को लेकर काम कर रहे थे तब हमको हमारा फाइल में एरर एक बोला था ना वहाँ पे कंपाइल टाइम में कि हैंडल यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। यस, सो आईओ एक्सेप्शन और तुम्हारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एक साथ फाइल रिलेटेड ही एक एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन छोड़ के बाकी जितने सारे एक्सेप्शन है हमारा वो सारे है तुम्हारा अनचेक एक्सेप्शन, सिर्फ यही हमारा चेक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन तो फाइल रिलेटेड जो सारे एक्सेप्शन होते हैं वो सारे होते हैं तुम्हारा चेक, और उनको छोड़ के बाकी जितना ही एक्सेप्शन तुम्हारा क्यों ना आए सारे अनचेक है। ओके, सो फर्स्ट मैं एक सिंपल से ही स्टार्ट करती हूँ, फिर बहुत सारे तो एग्जांपल है इसमें। ओके, सो ये है मेरा मेन मेथड और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगी। तो ये a एंड int p। ओके, ये मेरा गया, मैंने किया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको असाइन करूँगी। सो a इक्वल टू मैं करूँगी 0 और b इक्वल टू करूँगी 20। तो ये देख के तो समझ में थोड़ा सा आ ही रहा होगा। तो 20 सॉरी यहाँ पे कर देते हैं 20 बाई a। ओके, ये मैंने किया। अब क्या करना है मुझे, मैं प्रिंट करूँगी। तो प्रिंट में हम क्या करेंगे, हम b को प्रिंट करेंगे। ओके, ये हो गया। एंड ओके, तो इसको मैं रन करूँगी तो क्या आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन उससे। हाँ, क्या आया देखो, जावा वाला, क्योंकि हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलो अब इसको हैंडल करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है? मैम कैच लगाना है a के बाद ट्राई लगाना है। a इक्वल टू b के बाद 20 बाय a के बाद लगाना है। inside यहाँ पे हम लिखें no inside try block b equal to 20 by a होगा। after that catch will be एक्चुअली सिर्फ b 20 इक्वल टू a नहीं, a भी होगा क्योंकि a वाला वेरिएबल भी है ना। तो बेसिकली ट्राई ब्लॉक में हम क्या करते हैं, जो कंडीशन में हमारा एक्सेप्शन आ रहा है हम उसको रखते हैं और कैच ब्लॉक में हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो ट्राई और इसके बाद होगा मेरा ओके, यहाँ पे प्रिंट किया है मैंने, इसके बाद होगा कैच। सो कैच कौन सा वाला, अरिथमेटिक।
सो हमेशा ट्राई करना कि एक्सेप्शन का नाम लिखो पूरा, क्योंकि एक्सेप्शन ये लिख दोगे तभी काम चल जाएगा, पर जितना एक्सेप्शन का नाम लिखोगे उतना कितने सारे एक्सेप्शन है वो समझ में आ जाएगा। ओके, system.out.print। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट यू arithmetic exception plus एनी नंबर कांट, वो ना लिखे तो भी चलेगा, कांट बी, क्या हो रहा है, can't be divided by 0 कांट बी डिवाइडेड बाय 0 plus e। प्लस ई ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि छोटा सा एग्जांपल है ना। ओके, सो मेरा हो गया ये, क्या दैट मेरा एग्जांपल वाला प्रिंट किया, एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। ओके, सो ओके, तुम ये बता रहे थे प्लस ई, तो ये प्लस ई तो बेसिकली द नेम ऑफ द एक्सेप्शन है ना, एक वेरिएबल है, तो एक्सेप्शन को हम तरह से प्रिंट कर सकते हैं। In how many ways we can print an exception? ये सीस आउट में प्लस ई को छोड़ के, ये वाला तो इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक्सेप्शन को बेसिकली प्रिंट करते नहीं है, ये कोई वे नहीं है एक्सेप्शन को प्रिंट करने का। तो एक्सेप्शन को हम प्रिंट कैसे करते हैं, इस तरह से ना, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये यूज करते हैं ना हम, इस तरह से हम एक्सेप्शन को प्रिंट करते हैं। एक्चुअली इसको छोड़कर भी और भी वे है करने का, तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस को छोड़कर भी और दो मेथड है, मैं लिख देती हूँ। तो सो एक तो है मेरा प्रिंट स्टैक ट्रेस, सेकेंड वन इज तुम्हारा है तो सेकेंड है तुम्हारा यूजिंग टू स्ट्रिंग, हम यूजिंग टू स्ट्रिंग यूज करके कर सकते हैं। और एक थर्ड वन है दैट इज गेट मैसेज। गेट मैसेज अगर हम हाँ, इसका तो ऊपर वाला का यूज किए हैं, कल में हम यूज किए थे, उसमें ओवरराइड मेथड में आया था अपने आप। तो ये एक्चुअली डिफॉल्ट है, पर एक्चुअली ये बेसिकली उसके बाद भी तुम तो ये तो वॉइड है ना, तो इसके बाद भी तुम सपोज अगर एक्सेप्शन में कुछ मैसेज रखते हो तो तुम इसको गेट मैसेज से प्रिंट करवा सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं एक्सेप्शन का। शेयर करती हूँ, ओके मैं एक और क्लास बनाती हूँ। और मैंने इसमें मेथड रखी है, तो हमने अरिथमेटिक वाला किया है। ओके, सो एक्सेप्ट ये जो ट्राई कैच हमारा ब्लॉक है, इसमें कितना सारा कॉम्बिनेशन होता है, कोई बता सकता है? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर? अब कितना मैम, ट्राई हमेशा एक ही होता है, लेकिन कैच उसका बहुत सारा हो सकता है। मतलब मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है बोल रहे हो? हाँ, मल्टीपल ट्राई ब्लॉक भी हो सकता है। नहीं, ट्राई हमेशा एक ही होता है। ओके, और क्या हम बिना कैच के ट्राई ब्लॉक लिख सकते हैं? ये तो नहीं यूज किए, लेकिन नहीं लिख सकते होंगे शायद। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस, अगर तुम फाइनली यूज करो तो सिर्फ ट्राई और फाइनली का भी कॉम्बिनेशन। सपोज तुम्हारा कोई मेथड में एक्सेप्शन नहीं है, पर तुम फिर भी इन द केस कुछ ना हो इसलिए उसको रखना चाहते हो, तुम अगर सिर्फ ट्राई एंड फाइनली लिखो तो भी चलेगा। ये सारे तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, तो ट्राई कैच फाइनली एंड ट्राई एंड फाइनली। सो फाइनली ब्लॉक क्या है बेसिकली? तुम लोग बोलो, मैं तब तक लिखती हूँ।
मैं एक क्लास बनाती हूँ ऊपर। बोलो फाइनली ब्लॉक क्या है? Ma'am, finally block when no other catch block can uh, जब कोई भी कैच ब्लॉक से मैच नहीं करता एक्सेप्शन देन फाइनली लीव एग्जीक्यूट नहीं, ऐसा तो नहीं है लाइक कैच क्विक ब्लॉक इज से डिफॉल्ट है। नहीं, तुम्हारा कैच ब्लॉक अगर रहा भी फिर भी तुम्हारा फाइनली ब्लॉक। बेसिकली फाइनली ब्लॉक क्या है? हाँ फाइनली फाइनल, एग्जीक्यूट होगा हाँ exactly. So अल्टीमेटली। finally is a one हाँ kind of block which will always execute if exception occurs or not. Yes, that is a finally block. So हम यहाँ पे एक करेंगे, okay, alright, equal to, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, okay. अब हम क्या करेंगे, एक मेथड लेंगे, बहुत स्पेस हो जा रहा है। So public void क्या दे मेथड का नाम, डिस्प्ले रख देते हैं। ओके, अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ओके, सो arr देन 10 से इक्वल टू 11, ये हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हम मैन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो नंबर्स इक्वल टू न्यू सॉरी मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ओके, नंबर्स, ओके, हमने ये किया। अब हम क्या करेंगे, इससे कॉल करेंगे, सो नंबर्स डॉट डिस्प्ले। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, एवरी 10 इक्वल टू 11 दिखाएगा। हाँ, और एक बार बोलो, मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया। ओके, तो मैं इसको पहले रन करती हूँ, देखते हैं हमारा क्या होता है। तो क्या एक्सेप्शन खाया है हमारा, यस, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एरे डिक्लेयर 10 है, पर मैंने उसको इक्वल टू 11 से असाइन कर दिया। क्या हम नॉर्मल एरे में ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये एरर आया है। ओके, तो मैं इसको हैंडल करती हूँ। तो हमको इसको हैंडल कहाँ करना है, जहाँ पे मेरा एक्सेप्शन ऑकर है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम ये रखेंगे, और इसके बाद हम रखेंगे कैच ब्लॉक। कैच में हम क्या लिखेंगे, हमारा जो एक्सेप्शन है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ओके, बाहर चला गया, ओके, ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट में मैं क्या करूँगी, एक्सेप्शन लिख देते हैं, एक्सेप्शन सॉल्व। ओके, चलो फिर रन करके देखते हैं हमारा सॉल्व हुआ है या नहीं। अब रन एज, ओके, ये सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये है एरे इंडेक्स ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
तो ये भी मेरा अनचेक एक्सेप्शन है। ओके, तो अब आते हैं, ओके अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो अब तक हम ट्राई कैच कर रहे थे, अब हम फाइनली ब्लॉक भी यूज करेंगे। ओके, सो मैं क्लास का नाम क्या दूं, मेन दे देती हूँ। ओके ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसी में भी कर सकते थे, बेटर होता उसी में कर लेते। रखो मैंने डिलीट कर देती हूँ, उसी में कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ये वाला डिलीट कर लेती हूँ पूरा, पहले से नया से करते हैं। ओके, तो ये मेरा एरे है यहाँ पे। फिर मैं क्या करूँगी, ओके सो एक मेथड लूँगी पब्लिक, नहीं एक्चुअली मेथड नहीं, मैं कंस्ट्रक्टर लूँगी। तो पब्लिक नंबर्स, मैं कंस्ट्रक्टर ली और यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगी। सो फॉर int I equal to 0, yes I less than 10, less than then 10, I plus plus। ओके, I plus plus, ये हुआ तो मेरा क्या होगा, sys out, नहीं सिस आउट नहीं रखूंगी। तो I, ARRI, yes ARRI इक्वल टू I। ओके ओके, इतना मेरा हो गया। तो तीनों ब्रेसेस, फिर उसके बाद मैं एक मेथड लूंगी फिर से। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वाला मेथड लेते हैं यहाँ पे। ओके, मेथड ले लिया। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं ये यूज करूँगी प्रिंट राइटर, W, यस प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर का काम क्या है बोलो तो, एक ज़्यादा है क्या मेरा ब्रेसेस, हमें तो एक शायद नहीं तो हमें, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ का है, ये वाला यहाँ का है, ये वाला यहाँ का है, तो है फिर एरर देखते हैं। ओके, इसको मैं नल डिक्लेयर की और उसके बाद ओके मैं क्या करूँगी, सो आउट इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर और यहाँ पे मुझे एक चीज करूँगी, न्यू, सॉरी मेरा थोड़ा तो फाइल, यहाँ पे लिखूंगी फाइल राइटर। ओके, सो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगी file.txt। ओके, सो इतना हुआ। आपने क्या किया, यहाँ पे एक फिर से फॉर चलाऊंगी। तो फॉर सो is in equal to 0 फिर I या टेन वाला I प्लस प्लस। ओके, इतना हुआ। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पेरेंट में मैं लिखूंगी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा मेरा प्लस आई, यस प्लस आई। और फिर थोड़ा परेशान मत होना ना, मेरा वो कितना भाग रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगी, ये वाला जो मैं रखी हूँ, दैट इज ARR of I।
ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये होके जाने के बाद एक मिनट। हाँ, ओके, मैं ये म्यूट करके करती हूँ। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा चिल्ला रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, फिर मैं अनम्यूट करती हूँ।
ओके, तो चलो इसको रन करके देखते हैं अब। तो ये वाला तो देखा ना तुमने कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था क्योंकि हम फाइल को लेकर काम कर रहे हैं। सो इट्स अ चेक एक्सेप्शन। तो मैंने बोला कि फाइल का जो सारा होता है वो चेक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन खा सकता है, क्या बोल सकते हो? ओके, मैंने ना एक मैम हैंडल किया है, दैट इज आईओ एक्सेप्शन। कोई और एक्सेप्शन यहाँ पे खा सकता है क्या? एनी चांसेस? मैम हेलो मैम, और यस, प्रिंट राइटर वो क्या है? मैं बताती हूँ। तुम बोलो, मैं बताती हूँ प्रिंट राइटर क्या है। Chances of any exception, other exception? मैम अगर फाइल है तो है, फाइल में तो इनपुट आउटपुट से नहीं, फाइल वाला तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हैंडल कर दिया है, आईओ एक्सेप्शन। और कोई हो सकता है? एक बार ध्यान से देखो ये कोड, कुछ हो सकता मैम है? और एरे वाला जो था, एरे साइज बाउंड करके ये था। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यस, देखते हैं वो होता है या नहीं। रनर्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नहीं होता। हाँ। हम्म। तो ये देखो मेरा आई का, मेरा मेरा लूप क्या वाइज मेरा क्या है वैल्यू। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है, लेस देन 10, सो 0 to 9 हुआ। और क्या हुआ मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या था, अगर मेरा ये जो मैंने फाइनली मैंने बोला कि फाइनली ब्लॉक तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक्सेप्शन हो या ना हो। तो मेरा जो आउट है अगर नॉट इक्वल टू नल हुआ तो क्या हुआ, मेरा राइटर क्लोज हो। हाँ राइटर मैम, क्लोज। प्रिंट राइटर का यूज क्या है मतलब? हाँ मैं बताती हूँ, पहले मैं समझा दूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आउट अगर नॉट इक्वल टू नल हुआ तो क्या हुआ, मेरा ये प्रिंट होगा और आउट क्लोज हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली तुम्हारा प्रिंट राइटर बेसिकली ना जावा में एक क्लास है। ओके, जो क्या करता है तुम्हारा, सपोज हम इसको तभी यूज करते हैं जब हमको एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट में चाहिए, तभी हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली क्या हम ये ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, ओके, बेसिकली ओके मैं लिख देती हूँ, इट विल बी बेटर। देखो मैं लिख देती हूँ ये सो प्रिंट राइटर क्या है तुम्हारा, प्रिंट राइटर एक क्लास है, इज द implementation of writer class जो क्या करता है ओ ना, ये है मेरा प्रिंट राइटर। तो ये कोड समझ में आया? कोड तो समझ में आ गया। ओके, तो ये है कॉम्बिनेशन तुम्हारा टाइप फाइनली ब्लॉक का एज वेल एज ए चेक एक्सेप्शन। ओके, देखते हैं अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल।
एक मिनट हाँ